آڈیو لیک نے عمران خان کے سازش کا بیانیہ بے نقاب کر دیا۔ اس شخص کو قوم کو جواب دینا ہوگا۔ ہم نے کبھی NRO نہیں مانگا۔ ہمارے خاندان نے کئی بار انتقامی کارروائیوں کا سامنا کیا۔ مریم نواز کو عدالت نے میرٹ پر بری کیا۔ عمران نیازی اپنے دور میں دیے گئے NROs کا حساب دیں۔ اگر آئینی اور قانونی طریقے سے پنجاب میں حکومت تبدیل ہوتی ہے تو کوئی اعتراض نہیں۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا دو ٹوک پیغام۔ ملک کی سرحدیں مضبوط ہاتھوں میں ہیں۔ مسلح افواج قوم کی حمایت سے کسی بھی ملک، گروہ یا طاقت کو پاکستان کو سیاسی یا معاشی طور پر غیر مستحکم کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دے گی۔ فیک نیوز اور پروپیگنڈے پر توجہ نہ دی جائے۔ پاکستان سے منظم دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا ہے۔ امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ ہم ملک کے ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کا پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب۔ عمران خان کو اداروں کی غیر جانبداری سے تکلیف ہے۔ بیرونی سازش اور سائفر کا پردہ بے نقاب ہو گیا۔ اگر آڈیو جعلی ہیں تو عمران خان ان کا فورنسک کروائیں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف۔ رانا ثناء اللہ کے وارنٹ گرفتاری انتشار، فساد اور افراتفری پھیلانے کی سازش ہے۔ یہ اقدام عمران کے حکم پر وفاق پر حملہ کرنے کی تیاری ہے۔ فارن ایجنٹ اپنی کرپشن، قومی سلامتی سے کھیل اور عوام کو بے وقوف بنانے کی چالوں سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ اور 8 اکتوبر 2005 کے قیامت خیز زلزلے کے 17 برس بعد بھی انمٹ نقوش باقی۔ 8 اکتوبر کا زلزلہ دکھ، مصیبت، عزم اور یکجہتی کا دن۔ پاکستانی عوام نے زلزلے اور سیلاب سمیت ہر قدرتی آفت کا بلند حوصلہ کے ساتھ سامنا کیا۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم محمد شہباز شریف کے پیغامات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز شو ایٹ 6 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا میزبان ایاز اسلم، اور میں ہوں نازیہ خان۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے ہیں۔ تفصیلات کی جانب بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں ہے۔ مریم نواز کو نیب کے اصل قانون اور میرٹ پر بریت ملی۔ انہوں نے کہا کہ NRO کا راگ الاپنے والا عمران نیازی اپنے دور حکومت میں خاندان اور عزیزوں کو کرپشن کے مختلف مقدمات میں NRO دلاتا پھرا۔ قوم حقیقت جان چکی ہے۔ آڈیو لیکس نے ثابت کر دیا ہے کہ ریاست مدینہ کی بات کرنے والا شخص ہارس ٹریڈنگ میں ملوث ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی لاہور میں میڈیا سے بات چیت کی مزید تفصیل بتا رہے ہیں اسد یار خان۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں۔ جب بھی عدالتوں نے طلب کیا پیش ہوئے۔ ہم نے جھوٹے مقدمات میں جیل کی صحبتیں برداشت کیں۔ NRO کی گردان کرنے والا شخص کرپشن کے مقدمات میں حکم امتناعی کے پیچھے چھپ رہا ہے۔ 190 ملین پاؤنڈ کا حالیہ کیس نیب نیازی گٹھ جوڑ کی ایک اور مثال ہے۔ تمہارے دور میں علیمہ خان صاحبہ کو NRO ملا، تمہارے دور میں جو محترمہ فرح گوگی صاحبہ ان کو NRO اینٹی کرپشن دیا۔ معلم جبہ لے لیں، بلین ٹری، جس میں ثابت ہو چکا ہے، BRT پشاور میں ثابت ہو چکا ہے کہ اربوں روپے کی کرپشن ہوئی۔ وہ کیس آج تک چل نہ سکے، وہ اسٹے آرڈر جو ملے یا کیس نہیں چلا، وہ NRO کس نے دلوایا؟ وہ عمران خان نیازی کا دور تھا۔ آپ کو قوم کو اب جواب دینا ہے۔ محمد شہباز شریف نے کہا کہ جھوٹ، سازش اور لفظ گفتگو عمران نیازی کا شیوا ہے۔ عمران نیازی نے دوست ملکوں کے ساتھ تعلقات کو خراب کیا۔ آڈیو لیکس نے ثابت کر دیا کہ ریاست مدینہ کی بات کرنے والا شخص خود ضمیر فروشی میں ملوث ہے۔ جھوٹ سے نہیں، دروغ گوئی سے نہیں، اور اداروں کے خلاف یعنی لمبی زبان استعمال کرنے سے نہیں، اور ضمیر کی فروخت اور ضمیر کی سیل سے نہیں۔ ایک ایک پائی قوم کی دکھ کو مٹانے کے لیے ہمیں استعمال کرنی چاہیے۔ آج تو آپ خود کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے کہ میں نے 5 ووٹ
خریدے ہیں. قوم کو یہ بھی بتا دو کہ اس پہ اوپر کتنے کروڑ اربوں روپے خرچے. جس طرح توشہ خانہ کے جو تحفے تھے ہیروں کے اور جواہرات کے بیچ کے جیب میں ڈال لیے. کس سے آپ نے یہ ہیرے اور جواہرات لیے اور آپ نے وہ ووٹ خریدے؟ یہ قوم کو بتا دیں ذرا. وزیر اعظم نے استفسار کیا کہ 4 سال گزرنے کے باوجود 56 کمپنیوں کے کیس کا کیا بنا جس کے ذریعے مجھے بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. میں نے ان کمپنیوں سے کام لے کر ملک کی تقدیر بدلی. محمد شہباز شریف نے کہا کہ ہم نے ریاست کی خاطر سیاست کو داؤ پر لگایا، حکومت سنبھالی اور ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا. ملک کی خاطر ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہے. سیاسی کیپٹل یا میرے قائد نواز شریف کا سیاسی کیپٹل پاکستان پر ایک مرتبہ نہیں، کروڑ مرتبہ نہیں، اربوں مرتبہ قربان. پاکستان اگر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوتا ہے، پاکستان کے عوام اگر بیماری اور جو غربت اور بے روزگاری سے نکل آتے ہیں تو اس سے بڑی کوئی قربانی نہیں ہے. مسلم لیگ نون کے قائد محمد نواز شریف کے دور حکومت میں حاصل ہونے والی کامیابیوں کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہم نے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا، بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم کی، کسانوں کو آدھی قیمت پر کھاد کی فراہمی یقینی بنائی، موٹر ویز اور میٹرو بس کے منصوبے شروع کیے اور ملک کی معیشت کو مضبوط بنایا. عمران نیازی کی حکومت نے قوم کو جھوٹ اور دغا بازی کے سوا کچھ نہیں دیا. ہم ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا بھرپور کردار جاری رکھیں گے. اسد یار خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ ہمسایوں کے ساتھ تمام مسائل کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے خواہاں ہیں، تاہم امن کی خواہش ہماری کمزوری نہ سمجھی جائے. پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں 146ویں پی ایم اے لانگ کورس پاسنگ آؤٹ کی پریڈ کی تفصیل ہمیں بتائیں گے عاصم رضوان اپنی اس رپورٹ میں. The armed forces, with the support of our citizens, will never allow any country, group or force to politically or economically destabilize Pakistan. 146ویں پی ایم اے لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی پروقار تقریب پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں ہوئی. پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس میں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس، 65ویں انٹیگریٹڈ کورس، 20ویں لیڈی کورس اور 5ویں بیسک ملٹری ٹریننگ کورس کے کیڈٹس بھی شامل تھے. پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے کیڈٹس کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ آپ ایک عظیم اور بہادر فوج کا حصہ بننے جا رہے ہیں. آگے کا سفر بہت سے چیلنجز لے کر آئے گا. مستقبل میں مشکل اور بڑے فیصلے کرنا ہوں گے، تاہم ملک کی حفاظت، عزت اور بہتری آپ کی اولین ترجیح ہے. انہوں نے کیڈٹس کو نصیحت کی کہ کسی بھی فیک نیوز اور پروپیگنڈے پر توجہ نہ دیں. The message is clear. The armed forces, with the support of our citizens, will never allow any country, group or force to politically or economically destabilize Pakistan. As a good soldier, don't get distracted by fake news and political wrangling in the country. Respect the democratic institutions and be always ready to defend the territorial integrity, sovereignty and Constitution of Islamic Republic of Pakistan with your life. جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ پاکستان ایک پرامن ملک اور ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات کا خواہاں ہے، تاہم امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. ہم ملک کے ایک ایک انچ کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں. We are trying our best to break the political logjam which has denied the countries of South Asia to move forward and resolve all regional and bilateral issues in a peaceful and dignified manner. As opposed to fighting each other, we should collectively fight hunger, poverty, illiteracy, population explosion, climate change and disease. However, I must highlight here that our desire for peace must not be construed as our weakness. No one should make any mistake about our collective resolve to defend our core interest and every inch of our motherland. جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا کہ افواج پاکستان نے دہشت گردی سے نجات کے لیے بڑی قربانیاں دیں. اس سے قبل تقریب کے مہمان خصوصی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی پریڈ گراؤنڈ آمد کا اعلان روایتی انداز میں بگل بجا کر کیا گیا. جنرل قمر جاوید باجوہ نے پریڈ کا معائنہ کیا. پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس نے روایتی انداز میں حلف لیا اور قومی نعرہ لگایا. میں سچے دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا.
मेहमान खसूसी जनरल कमर जावेद बाजवा ने मजमूई तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर नई आला कंपनी हैदर को परचम अता किया। नई आला कंपनी हैदर कंपनी। मेहमान खसूसी ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले कैडेट्स को एजाजात से नवाजा। मजमूई तौर पर बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने पर एजाजी शमशीर 146वें PMA लॉन्ग कोर्स से ताल्लुक रखने वाले एकेडमी सीनियर ऑनर अफसर मोहम्मद दाऊद ने हासिल की, जबकि सदारती तलाई तमगा 146वें PMA लॉन्ग कोर्स के नंबर 2 कैडेट बटालियन सीनियर ऑनर अफसर शुएब ने हासिल किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ओवरसीज गोल्ड मेडल दोस्त मुल्कों के कैडेट्स में से नेपाल से ताल्लुक रखने वाले कंपनी सीनियर ऑनर अफसर जगत के हिस्से में आया। टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स में COS एजाजी छड़ी कोर्स अंडर अफसर मुदस्सर ने हासिल की। 65वें इंटीग्रेटेड कोर्स की कमांडेंट की एजाजी छड़ी कोर्स अंडर अफसर हैदर, जबकि 20वें लेडी कैडेट कोर्स में कमांडेंट की एजाजी छड़ी कोर्स अंडर अफसर जुनैरा के हिस्से में आई। तकरीब में कौमी तराना बजाया गया और पास आउट होने वाले कैडेट्स ने इस्लामी के चबूतरे के सामने मार्च पास्ट किया। पास आउट होने वाले कैडेट्स में दोस्त मुल्कों कतर, इराक, फलस्तीन, श्रीलंका, मालदीव और नेपाल के 20 कैडेट्स भी शामिल हैं। पासिंग आउट परेड में आला सिविल और अस्करी हुकाम, गैर मुल्की सफारतकारों और मुख्तलिफ मुल्कों के मिलिट्री अताचियों ने शिरकत की। पास आउट होने वाले कैडेट्स के अजीज व अकारिब भी तकरीब में शरीक हुए। आसिम रिजवान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं कि इमरान खान की ऑडियो लीक्स के बाद उनका नया बयानिया 3 से 4 माह में ही तबाह हो गया। मजीद तफसील बता रही हैं सदफ अफजल। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि इमरान खान ने एक बयानिए के तहत 2018 का इलेक्शन लड़ा। इमरान खान बताएं कि 2018 में किए गए वादों में से कौन से पूरे किए, 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर कहाँ हैं। इमरान खान से पूछता हूं कि उस बयानिए का कौन सा जुज जो है या कौन सा हिस्सा जो है वो पाया तकमील जो है 4 साल में पहुंचा, जो 4 साल उन्होंने हुकूमत की है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद उन्होंने एक नया नैरेटिव तामीर किया। वो नैरेटिव क्या था कि जो वोट बेचता है या ख़रीदता है वो शिर्क करता है, उसके बच्चों को जो है रिश्ते भी नहीं मिलेंगे, कोई उनसे शादियाँ नहीं करेगा। नैरेटिव का एक और हिस्सा था कि बैरूनी साजिश है। इस मुल्क की, इस कौम की खुशकिस्मती है कि वो 3-4 महीने के अंदर जो है इसका चेहरे से जो है नकाब उतर गया है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इमरान खान खुद वोट खरीदने और बेचने में मुलविस हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान का करप्शन के खिलाफ जहाद कहाँ गया। उसका दोगलापन, उसकी मुनाफकत, उसकी जालसाजी, उसकी फ्राडियों वाली गुफ्तगू, हरकतें, वो सारी की सारी कल की ऑडियो लीक्स ने जो कसर थी वो भी पूरी कर दी है और पता नहीं अब कितनी और आनी है। बैरूनी साजिश की भी ऑडियो आ गई है, वो साइफर वाली भी ऑडियो आ गई है। ये कौम की बदकिस्मती है कि ऐसे शख्स जो हैं ये तारीख में बहुत कम होता है। इससे हमें सबक लेना चाहिए कि ये शख्स जो है किस तरह सामने आया है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि इमरान खान जल्द से जुलूस कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान समेत तहरीके इंसाफ का कोई लीडर सैलाब जदगान के पास नहीं गया। सदफ अफजल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी इमरान खान के खौफ की वजह से जारी हुए। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर इत्तलात कहती हैं कि इंतशार, फसाद, अफरा तफरी फैलाने की साजिश है ताकि फॉरेन एजेंट झूठे की करप्शन, कौमी सलामती से खेल और आवाम को बेवकूफ़ बनाने की चालों से तवज्जो हटाई जा सके। उन्होंने कहा कि इमरान के हुक्म पर वफाक पर हमला करने की तैयारी है। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और नायब सदर मरियम नवाज से साबिक वफाकी वजीर तहमीना दौलताना ने लंदन में मुलाकात की। इस मौके पर मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में जमहूरियत की बहाली के लिए तहमीना दौलताना की खिदमात को सराहा। और नाज़रीन, अभी कुछ बात करते हैं आज से 17 साल पहले गुजरे एक ऐसे सानहे की कि जिसने पाकिस्तान में क़यामत सुगरा बर्पा कर दी।
8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले के गुजरे 17 साल हो चुके हैं, मगर इस ज़लज़ले के अनमिट नकूश आज भी ज़लज़ला मुतासरीन के जहनों पर नक्श हैं। जी हाँ, इस तरह तो पूरा पाकिस्तान मुतासिर हुआ, लेकिन खासकर आज़ाद कश्मीर इस ज़लज़ले से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ, जहाँ पर जानी नुकसान भी खासा हुआ और ज़लज़ले से बहुत सी जुड़ी सुलगती यादें हैं जो लोगों के जहनों में अभी तक मौजूद हैं। और ये एक ऐसा वक्त था जो कि बड़ा कड़ा इम्तिहान था पूरे पाकिस्तान के लिए। कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि ज़लज़ले के बाद की जो तबाहियाँ हैं वो इस तरह से सामने आएंगी और इतनी कीमती जानें इसमें जाएंगी। और इसमें इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर नाज़रीन एक ऐसी शख्सियत ज्वाइन कर रही हैं कि जो उस वक्त पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ का हिस्सा थी और वो पहली रिपोर्टर्स थी, खातून रिपोर्टर थी कि जो इस इलाके में पहुंची जहां ज़लज़ले ने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई। पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की डायरेक्टर न्यूज़ भी रह चुकी हैं। इसी हवाले से उनसे बात करते हैं। शाज़िया सिकंदर साहिबा में ज्वाइन कर रही हैं। शाज़िया सिकंदर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो हम ये फरमाइएगा कि जब आप वहाँ पहुँची क्या मनाजिर थे, क्योंकि आप वो पहली खातून रिपोर्टर थी जो उन इलाकों में पहुँची थी जहाँ ज़लज़ले ने सबसे ज़्यादा तबाही मचाई। जी, मैं वहाँ पर पहुँचने वाली शायद पहली रिपोर्टर थी। मुझे खुद भी नहीं मालूम था। मैं ISPR के उस पे हेलीकॉप्टर पे हम लोग वहाँ गए। जब वहाँ पहुँचे हैं तो मुझे ये नहीं मालूम था हम किस जगह लैंड कर रहे हैं। जब हम अपने साथ ले गए थे लाइव ट्रांसमिशन का सामान, वहाँ पहुँचे हैं तो एक अजीब मंजर था लोगों का, और वो हमारी तरफ ऐसे दौड़े, किसी के हाथ से खून बह रहा था, कोई रो रहा था, कोई फरियाद कर रहा था, कोई प्रेग्नेंट औरत थी। मतलब हम तो परेशान हो गए कि हुआ क्या है और हम कहाँ आ गए, क्योंकि हमारे जहनों गुमान में भी नहीं था कि इसकी इंटेंसिटी क्या होगी और हम किस इलाके में आ गए हैं, और कुछ मालूम नहीं। तो फिर लोगों से सवाल किए और फिर पता चला। मगर एक अजीब बात जो मैंने वहाँ नोटिस की, एक अजीब किस्म का सुकूत तारी था। सुकूत कहते हैं इंतहाई अजीब, मौत जैसी खामोशी। और जिस बच्चे से, जिस बड़े से मैं करीब से मिली हूँ, उनको जैसे बेखबरी का आलम था, सख्ते में थे या बहादुरी में इतना बड़ा सदमा झेल गए कि कुछ मतलब नाकाबिले बयान है। और आज भी इतने बरस गुजर जाने के बाद भी वो याद में बिल्कुल ऐसा ताज़ा है कि मैं एक एक जुज़ियात उसकी बता सकती हूँ कि कहानी। मैं वहाँ से निकल के हम लोग शहर में चले गए, पता चल गया कि ये मुजफ्फराबाद है, और वहाँ चले गए और उस जगह पहुँच गए एक स्कूल के पास। तो वहाँ चौकीदार खड़ा था, तो मैंने उससे पूछा ये क्या जगह है। कहने लगा कि ये स्कूल है। और मैंने कहा ये जूते किसके पड़े? 85 जूते पड़े हुए थे, बस्ते पड़े हुए थे। तो कहने लगा ये उन बच्चों के हैं जो उधर दब गए। समझ ना आया, रजिस्टर नहीं किया दिमाग ने कि क्या कह रहा है। तो कहने लगा अभी कोई, मुझे तो अभी भी आवाज़ आ रही है, और वो पुकार रहे थे कि हमें बचा लो। और मैं इत्तेफाक से एक ऐसी चीज़ के नीचे गिरा कि मेरे ऊपर आके एक दरख्त गिर गया और मैं बच गया। वहाँ ज़मीन पे निशान पड़े हुए थे। फिर हमने आगे शूट किया। तो अब मैं क्योंकि इस तरह मेंटली तैयार नहीं थी, मैं तो सेनेट की प्रोसीडिंग कवर करने के लिए दफ्तर पहुँची थी। वहाँ से जब देखा कि उन्होंने कहा कि कोई मेन रिपोर्टर चला जाए, तो मैं वहाँ फिर चली गई। तो मेरे जो हालात थे, वो जूता भी इस काबिल नहीं था कि मैं जिससे भागती ज़रा तेज़ी से। मगर एक अजीब मौत को इतने करीब से देखना। और शाज़ी साहिबा, बिल्कुल आपके अभी भी लहजे में वही दुख और तकलीफ है जो यकीनन आपने उस वक्त भी जब अपनी आंखों से देखा होगा तो महसूस किया होगा। एक चीज़ मैं यहाँ आपसे जानना चाहूँगी, उस वक्त जब आपने खुद अपनी आंखों से देखा, ये भी हमने देखा कि कौम ने किस यकजहती और किस मोहब्बत और किस इत्तेफाक का मुजाहरा किया। आज हम फिर इसी किस्म की एक तकलीफ से गुजर रहे हैं। उस वक्त जिस तरह से लोगों में आपने यकजहती देखी और एक मुट्ठी हो गए अपने बहन भाइयों की मदद के दौड़े पूरा पाकिस्तान, वो कैसा था और आज उसकी आप कितनी ज़रूरत महसूस करती हैं? देखिए, पाकिस्तानियों में बहुत जज्बा है लोगों की मदद करने का। पाकिस्तानी तो मशहूर हैं हिम्मत से काम लेने वालों में, और कोई आड़े वक्त में काम आने के लिए। वो वक्त और ये वक्त में बहुत फ़र्क है, बहुत मुख्तलिफ है। वो एक मतलब एक सानह अजीम था जिसमें, और जिसपे लोगों का अंदाज़ा नहीं था कि एक ही रात में हज़ार लोग मर गए। और इस पल के पल में मतलब तबाही इस तरह की हो गई, नस्लें ख़त्म हो गई। उस वक्त भी लोगों ने बहुत हाथ से हाथ मिला लिया था और चल पड़े थे। आज भी यही ज़रूरत है कि हमारे जो मुसीबत में
बहन भाई मुब्तला हैं, उसी जज्बे से उससे काम करने की ज़रूरत है। गो कि इंटेंसिटी उस नौयत की नहीं है, मगर है तो आफत तो ये भी है। तो हम तो यही कहते हैं, और जहाँ भी हमें अपने तौर पर किसी भी तकलीफ का मुकाबला करने के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक हिस्सा डालना चाहिए। इसको छोड़ दीजिए कि ये मुकाबला करने के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक हर पाकिस्तानी को हिस्सा डालना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया सिकंदर साहिबा, आप हमारे साथ मौजूद रहीं, और दामने वक्त में इस कदर गुंजाइश नहीं है कि हम मज़ीद अहवाल आपसे जान सकें, लेकिन यकीनी तौर पर जो दर्द आपने वहाँ महसूस किया आज से 17 साल पहले, आज भी हम उसे आपकी आवाज़ में छलकता हुआ महसूस कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कि आप पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ को वक्त दिया। जी बिल्कुल, और इसी हवाले से, इसी दिन के हवाले से वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने भी पाकिस्तानी आवाम के बुलंद हौसले की तारीफ की और कहा कि बुलंद हौसले के साथ उन्होंने कुदरती आफात का मुकाबला किया है, और कौम के साथ साथ बैन अक़वामी बरादरी को भी यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हुकूमत सैलाब से मुतासरा लोगों की बहाली के लिए कोशिशें कर रही है। साथ ही साथ सदर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब की बात करें तो उन्होंने भी 8 अक्टूबर के उन तमाम खानदानों के साथ अपनी यकजहती और हमदर्दी का इजहार किया है जो कुदरती आफत का शिकार हुए, और इस दिन को मनाने का मकसद अपने आप को कुदरती आफत से निमटने के लिए हमा वक्त तैयार रखना है। इस दिन कौम नए अज़्म का इजहार करती है कि मुश्किल वक्त आते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हिम्मत, हौसला हो और इन कुदरती आफत का मुकाबला किया जा सके। और पाकिस्तानी कौम का शुमार उस जिंदा दिल कौम में होता है नाजिया के, चाहे 2008 का ज़लज़ला हो, 2005 का ज़लज़ला हो, सैलाब हो, या अभी जो हालिया सूरत हाल जिसमें अभी जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है सैलाब की सूरत हाल पर, इस तमाम सूरत हाल में पूरी पाकिस्तानी कौम हमेशा मुत्तहद रही है। आज भी हमें अपने इस इत्तेहाद को दिखाना है, आज भी हमें अपने बहन भाइयों को हमारी मदद की ज़रूरत है, सैलाब मुतासरीन को हमारी मदद की ज़रूरत है। जिस तरह हमने 2005 के ज़लज़ले में अपने सैलाब जो ज़लज़ले से मुतासरा भाई हैं उनको नहीं छोड़ा, आज भी हमने उसी जज्बे का मुजाहरा करना है। जी बिल्कुल, और न्यूज़ शो 86 का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। आप साथ रहे, आपका शुक्रिया।